Second chapter, now we'll move on to for statistics, that is introduction, meaning and scope. First introduction, in the previous chapter we have studied about economic activity. We also discussed about the nature of economics, a science or an art or both. Here we will discuss the meaning of statistics, which is used in economics, economic planning and for making policies by the government. Human intelligence has applied itself in finding ways of examining phenomena, neutral, social and economic, around us in a systematic and scientific manner. A methodology has been developed for objective empirical study of things. The empirical methodology consists of making observations and collecting information, analyzing the information and drawing conclusions, and retesting these conclusions by further observations. This is how laws are made. For example, the manufacturer observes the pattern of demand and manufactures large or small quantity according to the demand, or manufactures new items accordingly. With the modern mass media, the newspaper, the radio, the television, etc., it is possible to collect information from a wide area and in a short period of time. When a manufacturer or a businessman studies the pattern of the demand and supply, he collects data information systematically, gets it organized and in some logical or systematic way, analyzes this data according to certain principles and draws conclusion. तो ये क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें उठाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक लॉजिकली और एक सिस्टमेटिक मैनर में, फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रिंसिपल एंड लॉज, एंड फिर उससे कंक्लूजन्स मेड किए जाते हैं या उसकी एक डिसीजंस मेक किए जाते हैं एक तरह से. ओके, अन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, ये लास्ट चैप्टर में टर्म सुनी थी, इसका मतलब यहाँ देखते हैं कि अन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन इज एन इन्वेस्टिगेशन वेयर फैक्ट्स आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे फैक्ट्स और जो चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट की जाती है थ्रू ऑब्जर्वेशंस, या डाटा जो भी कलेक्ट होता है वो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है. When information or observations are recorded in numbers or quantity, we say we have quantified information. For example, the number of students in a hostel, etc., are known as quantitative data. अब जब क्वांटिटी की बात की जाए, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, या नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, या प्राइस ऑफ वीट ड्यूरिंग अ वीक, और ये जो सारी चीज़ें क्वांटिटी की जहाँ बात हो रही है, जहाँ नंबर की बात हो रही है, वहाँ आ जाएगा क्वांटिटेटिव डाटा, और जहाँ क्वालिटी की बात हो वहाँ क्वालिटेटिव डाटा. However, not all information can be numerically expressed. It is not possible in certain cases to measure or quantify information. Example, preference of people viewing TV channels. प्रेफरेंस कि कौन ज़्यादा प्रेफर करे तो क्वालिटी हो जाती है. इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये नंबर में नहीं बताया जा सकता, तो सो द जजमेंट इन दिस केस इज़ नॉट क्वान्टिफिएबल, इट इज़ बेस्ड ऑन इम्प्रेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा. नॉन क्वान्टिफिएबल or qualitative items can however be measured in percentages. For example, percentage of people watching TV news in English or Hindi or other regional languages. Social science such as economics, sociology, management, etc. do not always deal with what we call inherent measurable or quantifiable facts. अब आ जाता है मेन, what is statistics, कि statistics है क्या. The systematic treatment of quantitative expression is known as statistics. जो सिस्टमेटिक मैनर में जो क्वांटिटेटिव यहाँ पे क्वालिटेटिव नहीं है, या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो क्वांटिटी में वो करा जाए, वो आ जाता है अपना स्टैटिस्टिक्स में. ये मैथ्स में भी एक चैप्टर होता है जहाँ ग्राफ के थ्रू अपन शो करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपन उसके स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बताते हैं. सो या दैट्स द थिंग. However, not all quantitative expressions are statistics. और ऐसा नहीं कह सकते कि जो सारे expressions है quantitative expression वो statistics हो, नहीं. You will see that certain conditions must be fulfilled for a quantitative statement to be called statistics. We will also consider later the functions and limitations of statistics. First, let's understand what comes under the name statistics. So, statistics can be defined in two ways, plural sense and singular sense. So, पहले ये दो define बहुत important है कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक तो प्लूरल सेंस में भी हो सकती है, सिंगुलर सेंस में भी हो सकती है. सो फर्स्ट आती है एज अ प्लूरल सेंस. अकॉर्डिंग टू हरेक्स सैक्रिस्ट, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other.
आई नो ये डिफाइन समझ में नहीं आएगी, बट आगे इसके फीचर्स दे रखे हैं जिससे इजीली समझ में आ जाएगी विथ एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टडी. फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. A single observation is not statistic. It is a group of observation. Example, pocket expense of annual during a month is 50 rupees is not statistic. मतलब जैसे अपन सिंगल इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं ना, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. बट एक ग्रुप की बात की जाए जिसमें मोर देन 2 है, तो वो क्या हो गई, वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट हो जाती है. तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. एग्रीगेट्स अपन ने पढ़ा था मैक्रो में, दैट इज ये ग्रुप की बात होती है. फर्स्ट में तो यही क्लियर हो गया कि यहाँ इंडिविजुअल काउंट नहीं होते, यहाँ ग्रुप की बात होती है. सेकेंड पॉइंट आता है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड extent by multiplicity of causes. Statistics are generally not isolated facts. They are dependent on or influenced by a number of phenomena. Example, electricity bills are affected by consumption and rate of electricity. स्टैटिस्टिक्स जो जनरली होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि कुछ भी फैक्ट्स दे दिए या वो नहीं, वो डिपेंड होते हैं किसी चीज़ में या वो किसी फिनोमेना से कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो अपन पे डिपेंड कर रहे हैं कि अपन कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी की रेट क्या जा रही है, उसी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे. ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी लिख के दे दिया. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. थर्ड आता है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. ये तो पता ही है कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाती अनलेस देन आर सपोर्टेड बाय नंबर्स. अगर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को परसेंटेज में बताया जाए तो भले ही वो स्टैटिस्टिक्स में आ सकती है, but statistics is mostly quantitative data. For example, if we say that the students of a class are very good in studies, तो ये नहीं है statistical. बट ऐसा बोला जाए कि मैंने स्टेटमेंट रीड 40 स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन, 30 गॉट सेकेंड डिवीजन, और इस टाइप के जो है वो स्टैटिस्टिकल होता है. ओके, तो ये स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. इसका मतलब क्या है, एन्यूमरेशन मीन्स अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. एक्यूरेट ऐसा ही नहीं कि अप्रॉक्सीमेटली नहीं चलेगा, यहाँ पे एक एक्यूरेट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ज़रूरी है. बट समटाइम्स वेयर द एरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज़ लार्ज. जहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या मतलब एक बड़ा स्टेट हो गया लाइक, तो उसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या हो गई, लार्ज हो गई, लार्ज एरिया हो गया, तो वहाँ पे एक्यूरेट एन्यूमरेशन पॉसिबल नहीं है. और उस केसेस में क्या करा जाता है कि एक्सपर्ट्स मेक एस्टिमेशंस ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर डाटा इज अवेलेबल. एस्टिमेशन यानी अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है कि वो लगभग उस वे में लेके चलते हैं. सो द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंक्वायरी. तो इंक्वायरी का नेचर जैसा होगा उसी पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करेगी. ओके, नेक्स्ट आता है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड विदाउट एनी ऑर्डर एंड सिस्टम आर अनरिलेबल एंड एक्यूरेट. उन्हें क्या एक सिस्टमेटिक मैनर में ही कलेक्ट करना ज़रूरी है. नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. For example, if we want to collect statistics of agricultural production, we must decide beforehand the regions, commodities and periods for which they are required. मतलब statistics are collected for a specific purpose. They would be more or less useless. अब जैसे अपन को स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, तो पहले अपन को ये डिसाइड करना है कि रीजन कौन सा लेना है, कमोडिटीज़ वगैरह और टाइम पीरियड वगैरह, एंड वो सारी चीज़ें डिसाइड होके जहाँ पे भी वो रिक्वायर्ड है और जैसा वो एरिया है उस टाइप से एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए और एक फिक्स्ड रीजन्स वगैरह होना चाहिए. दैन स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. और ये क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है ना, वो मेनली ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, और या फिर रिक्वायर्ड वो कंपैरिजन के लिए होता है. लाइक कैसे कंपेरेबल लास्ट ईयर का इस ईयर से, या लास्ट 10 ईयर्स का इस ईयर से, या रीजन वाइज कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन हो गया, या डिफरेंट कमोडिटी वाइज एक्सेट्रा. ओके, so when the above characteristics are not present in a numerical data, it cannot be called statistics. Thus all statistics are numerical statements of fact, but all numerical statements of fact are not statistics. समझ में आ गया? Then next है
स्टूडेंट्स एंड इन टू स्कूल्स 2015 to 16 का लिया है। केंद्रीय विद्यालय एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट्स बॉयज़ में कितने हैं 1600, इसमें गर्ल्स में 400 एंड टोटल 2000। परसेंटेज वाइज बताया जाए तो ये 80 है, ये 28 रेशियो में है, 80:2, 80 एंड 20। ओके, एंड इसमें ये एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है कौन से स्टूडेंट्स का, केंद्रीय विद्यालय एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड एज बॉयज एंड गर्ल्स एंड परसेंटेज इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ग्रुप एंड दिस कॉन्टेक्स्ट, ये जो है एक्सेट्रा हैव अ स्टैटिस्टिकल मीनिंग। ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिकल में ही होती है क्योंकि ये नंबर में एक्सप्रेस है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है दोनों चीज़ें। ओके, और ये क्या है, इन अ प्लूरल सेंस। So in plural sense, what we can say that by statistics we mean aggregates of facts. Aggregates means a group affected to a marked extent by multiplicity of causes and numerically expressed. Numerically expressed होना चाहिए, quantitative होना चाहिए, and multiplicity of causes मतलब different causes हो सकते हैं, like this one we have read. Then एक्सप्रेस एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड। अगर बड़ा एरिया है तो एस्टिमेटेड ही होगा क्योंकि वहाँ पे इंक्वायरी थोड़ी बहुत इतने एक्यूरेट नहीं बैठती है। देन रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होते हैं, प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए होते हैं। एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर मतलब कंपेरिजन के लिए, जैसे यहाँ पे है तो ये कंपेयर हो रहा है एक तरह से। ओके, so tomorrow we'll do the statistics defined in a singular sense. Thanks for watching.